Hello and welcome to Good, Better, Behtareen. I hope you're all doing wonderfully well and enjoying the change of seasons wherever you live. Either you're transitioning from winters into summers or the other way around. But it's an ever changing world. Seasons change, climates change, people change, moods change, energy goes up and down. Better to focus more on the internal climate and voltage inside. And so, very lucky to have on board this morning a lady who helps people adjust to internal climate change. Her name is Miss Hina Fatima, and she's joining us all the way from across the Pacific from LA, California. She is a health and wellness counselor and coach, and she's had a very eventful, milestone studded journey of her own. How she dealt with, studied, and prepared herself for life and work is best told by her. Hina, thank you so much for being on the show. Thank you so much for having me, Fazia. Thank you so very much for having me. It's an honor for me to talk to you, Fazia, and to talk to your lovely audience. So, first of all, मैंने कहा clarify कर दूं, I am not exactly in LA. I am in Fresno, so which is actually Central California. Exactly 200 miles from San Francisco and 200 miles from LA. So just a small detail about me, and I've been here, mashallah, say for last 13 years, and I have two beautiful daughters, and my journey in US has actually been really, yes, eventful, as you mentioned, but I believe कि हमें हार नहीं माननी चाहिए. ठीक है ना? I mean, I'm a doctor. I graduated from a Dow Medical College in 2006, and I came here. I got married. It was an arranged marriage, जैसे होती है. So of course it took me time. शुरू के 3-4 साल, it was a little hard. My mother-in-law was living with me, and then I had kids early on in my marriage. So I had to sacrifice, not pursuing my career as a doctor. But I never gave up on my dream. I never gave up on my dream to help people. So here I am now. I do this thing, and it's really rewarding because coaching and counseling kind of comes natural to me. So when it comes natural to you, so it benefits you, it benefits the other people, क्योंकि वो फिर आपकी connection होती है, आपकी आप relatable होते हैं, आपकी एक relationship develop होती है, people realize कि they're not being judged, क्योंकि हम हमारी सबकी सोच एक जैसी है ना, हम चाहे कहीं भी रहें, हम सोचते वैसे ही हैं, feel वैसे ही करते हैं, तो naturally वो as human beings we do relate and connect, और वो बहुत important होता है for any human being uh, to to have that feeling of trust, ना कि वो किसी को trust करे, वो अपनी दिल की बात कह सके, और दूसरा बंदा जो है वो उसको आगे से snub ना करे, और या दूसरा बंदा उसको आगे से ये ना कहे कि जी your feelings don't matter, या ये कि उसको minimize कर दे कि भी तो सभी के साथ ऐसा होता है, आप कौन से अनोखे हैं, ठीक है ना? तो नहीं, हम सब अनोखे हैं, ठीक है, हम सबकी feelings matter करती हैं, हम सबकी सोच matter करती है. It's very important for people to realize that. Hina, I mean, you have touched a sensitive and a very tender spot for so many of us because just the fact कि अगर मैं किसी से अपना मसला बयान करूं और वो मुझे फोकस्ड अटेंशन एंड ड्यू रिगार्ड और इम्पोर्टेंस के साथ सुन ले और वो क्रेडिबिलिटी अटैच करे, यानी वो मेरी बात का यकीन करे, और बेशक जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, लेकिन अगर आप किसी को वैलिडेट कर दे, अगर आप किसी को सुन लें, लेट देम हैव देयर से, तो आई थिंक आधे से ज्यादा हीलिंग तो उसी से हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है, और आधी से ज्यादा हीलिंग जब बंदा यही सोचकर कुछ शेयर करता है कि मुझे कोई सुन रहा है, कोई मुझे समझ रहा है. लोग बेचारे इतने अपसेट होते हैं, इतने इतने उनकी लाइफ में सफरिंग और प्रॉब्लम्स होती हैं कि जस्ट telling them कि ना it's okay यार, you are a human being, and it's okay to feel sad, and it's okay to feel the way you feel, and it's something very normal, we all go through that.
it was a very big thing for her, and it's very important to be very sensitive to people, हम कभी कभार चीजें रियलाइज नहीं करते हैं, हम अपनी अनजाने में कुछ चीजें ऐसी कह जाते हैं, या सब जस्ट बिकॉज कि हमने कुछ चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं या देखी नहीं होती हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि भी दूसरों की लाइफ भी परफेक्ट होगी. एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन देयर ओन वे. कहीं भी रह रहे हो, उनकी लाइफ कैसी भी हो, हमें देखने में लगती हो कि परफेक्ट है उनकी लाइफ, पिक्चर परफेक्ट है उनके पास. मे बी दे मे बी फाइनेंशियली वेल ऑफ, मे बी they have a family, and they look perfectly happy, but everybody has their own struggles, everybody has their own past, everybody has stuff that's bothering them, and it does affect them, it does affect their relationships. Yes, and this whole plethora of things that is happening with them, or any combination from this, तो हम हो सकता है उनको कितने सारे इन मामलों में हेल्प नहीं कर सकते पूरी तरह, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं डीलिंग विद आवर बैगेज. लेकिन कम से कम हम ये कर सकते हैं, व्यूअर्स जैसे हिना बता रही हैं, कम से कम ये कर लीजिए कि अगर कोई आपसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम या अपना इमोशनल बैगेज या अपना साइकोलॉजिकल बैकलॉग पास्ट का या कभी कुछ भी बयान करे, तो एक तो ये कि उसको मिनिमाइज नहीं करें. ये नहीं कहें कि अरे भाई तुम तो बस ओवर इमेजिन करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो. प्लीज ये कह के उसके मसले को मिनिमाइज या हम कहें डिग्रेड ना करें. ठीक है, उसको एक्सेप्ट, उसको आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट कर लीजिए. दूसरी चीज ये कि अपने आप को हमको अकले कुल समझकर ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जल्दी में होते हैं और हम दूसरे की किसी बहुत बड़े लाइफ चैलेंज या मसले को अपना 2 मिनट का नुस्खा बना के, प्रिस्क्रिप्शन बना के, कुछ उसको वर्बली स्क्रिबल करके बोल देते हैं, अरे तो बस तुम इतनी सी बात पे परेशान हो तो तुम यूं 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 कर लो. आप किसी को कॉफी ऑन द गो बनाने का तरीका नहीं बता रहे, आप कॉफी मशीन रन करने का तरीका नहीं बता रहे कि ये तुम्हारा ये पर्कुलेटर को इस तरह चलाओ, ये है, ये फिल्टर है, ये तुम्हारी कैफे लाटे या चाय लाटे और ये तुम्हारी मौका बन गई. ऐसे नहीं बात है. That's what I tell people, that being the listening ear is so important. ठीक है, क्योंकि a lot of times लोग people only need to do catharsis, they just need to vent out, और जब वो catharsis हो जाता है तो ही वो उनके आधे मसले हल हो जाते हैं. ठीक है. एंड सेकंड टाइम जो ये मिनिमाइज वाली बात की है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मैंने ये नोट किया कि a lot of times जैसे लोग मुझे भी कहेंगे कि यार हिना, मूव ऑन, forgive and forget, it's not easy to forgive and forget, it's not easy to move on, it's not easy कि यार you are not the only one who's going through that, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है. हम या तो हम खुद अपने आप को कंपेयर करते हैं, या लोग हमसे कंपेयर करवाते हैं कि भी तुम उसको देखो कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे की. आई कंप्लीटली अग्री एंड एक्सेप्ट कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि अगर किसी और की लाइफ में खुदा न खास्ता मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो मेरी प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती. तो सो ये जो चीज है ना, मतलब ठीक है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने सर्कमस्टांसेस हैं, मेरी लाइफ की मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है ना. जब when I came to US 13 years ago, माशाल्लाह से अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी 13th wedding anniversary सेलिब्रेट की है यहाँ पे. तो शुरू के 3-4 साल मैं नहीं आगे कुछ परस्यू कर सकी, और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था बहुत लोगों की तरफ से कि भी मैं आई डू माई स्टडीज, एंड मैंने स्टेप 1 दिया, लेकिन मैं आगे नहीं कर सकी. मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि मैं आगे अपना करियर परस्यू करूँ, नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ अपनी मदर इन लॉ थी, बच्चे थे, मेरे पास कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं था, घर था. तो मेरे दिमाग में वो एक ideology थी कि भी I want to be a good wife also, I want to be a good mother also, a good daughter-in-law also, or I did not have the tendency to balance my education with my work, and that's completely okay. ठीक है ना. There are people जो करते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि लड़कियां नहीं करती हैं, बहुत लड़कियां करती हैं, बहुत लड़कियां पढ़ती भी हैं, अपने घरों को और अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करती हैं. लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई, so it's not a failure for me. हर किसी के घर के सर्कमस्टांसेस, हर किसी की इमोशनल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती हैं, एंड दैट्स व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू नो कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. ठीक है ना. ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मैंने अपने आप को छोड़ा नहीं. मैंने अपने आप को फिर भी अलाइव रखा,
physically, intellectually. I volunteered with groups, different यहाँ पे organizations हैं, उनके साथ मैंने volunteer किया. ठीक है, मैं thank you so much. I used to write as a ghost writer, blogging करती थी मैं, newsletters करती थी, इस तरह की चीजें करती थी. It used to keep me kind of intellectually alive, and I never made money out of it. तो ये भी मैं एक important चीज बताना चाहती हूँ, because a lot of people come to me, and they worry about we are looking for a job. I go like, jobs and money, they come. ठीक है ना, स्पेशली जब आपके पास कोई लिमिटेशन है, आपके घर की लिमिटेशन है, आपके बच्चों की लिमिटेशन है. सो देन व्हेन यू नो कि आप फुल टाइम नहीं दे सकते अपने जॉब को, ठीक है, बट यू आर स्टिल सीकिंग फॉर अ जॉब, you yourself know. So why are you frustrating yourself? You are actually frustrating yourself by trying to seek something which you yourself know you cannot achieve. So it's very important for you to realize what you can do in that moment, in that circumstance, that will make you happy also, that will make you fulfilled also, feel fulfilled and accomplished, and make you feel कि हाँ, I'm making an impact, or I'm doing something with my life. And in the meanwhile, it's not kind of affecting your personal life, personal relationship. ये भी तो हम नहीं चाहते कि भी आप बिल्कुल ही अपना घर छोड़ दें और आप अपना करियर बनाना शुरू कर दें. That also we don't want, right? So I mean, आप अपने घर को देखकर, अपने circumstances को देखकर, अपनी mental और emotional हालत को देखकर अपने आप को दूसरों के साथ compare नहीं करें. ठीक है ना, आप अपनी circumstances को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, do it. But never let go. I know a lot of people, जो लड़कियां जो हैं, जो छोड़ देती हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होती, उनके इन-लॉज उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, फिर उस वक्त तो वो छोड़ देती हैं, फिर 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, then they start regretting. I mean, I have come across so many people who in their late ages, like they're in their 50s and their 60s, and they come and they say कि यार है ना, we are not happy in life, we don't have inner peace. And मुझे ये हैरत होती है कि यार आपने अपनी जिंदगी का इतना टाइम गुजार दिया, आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, और अब आप कह रहे हैं कि जी you are not happy in life and you don't have inner peace. ठीक है, आपके इर्द गिर्द तो खुशियां ही खुशियां हैं, आपका घर सेटल्ड है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी जिंदगी में सैक्रिफाइसेस की होती हैं, इतनी सैक्रिफाइसेस की होती है कि दे डोंट फील फुलफिल्ड. उनको बस ये लगता है कि हम सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, या अपने शोहर के लिए कर रहे हैं, या बच्चों के लिए कर रहे हैं. पहले आप शादी से पहले माँ बाप की सुन रहे होते हैं, उसके बाद हम शोहर की, इन-लॉज की, बच्चों की. तो हमारी लाइफ जो कॉन्स्टेंटली दूसरों के लिए होती है, ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है कि यू फील लाइक यार हमने अपने लिए क्या किया, ठीक है ना. तो मैं आई थिंक, और मैं इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रही हूँ लड़कियों को कि मतलब if somebody takes it in a negative sense कि जी मैं शायद कोई किसी को rebellious बना रही हूँ, I'm not doing that. नहीं, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं ये कहूँ कि जी नहीं आप बिल्कुल ही सबको छोड़ दे, ठीक है ना, and do whatever you have to do. नहीं, आपको सबको साथ लेके चलना है, लेकिन आपको अपने आप को भी देखना है, अपनी खुशी को भी देखना है, अपने घर को देखना है, सब कुछ देखना है. और अगर फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड कर रहे हैं to be a housewife, or if you're deciding to sacrifice whatever, we all sacrifice, मैंने भी sacrifice किया, but then you be happy with it, because if you're not happy with it, and if you're making that decision under the pressure of other people, then there will be an outburst at some point in time. कभी ना कभी जिंदगी में you will regret it. बिल्कुल, और आप बिटर और रिजेंटफुल हो जाते हैं. बहुत ज्यादा. बिटरनेस एंड रिजेंटफुल, अगर आपको वाकई कोई, अगर आप नेकी कर रहे हैं या किसी के लिए आप एक फेज ऑफ लाइफ में आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो फिर अपनी सैक्रिफाइस को भी ओन कीजिए, खुश दिली से कीजिए. एक्सक्यूज मी. बिल्कुल. वरना आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बिल्ड होने लगती है, और वो एसिडिक और कॉस्टिक होती है, और फिर वो आपकी जो सोल है ना और स्पिरिट, उसको एक तरह से अल्सरेटेड कर देती है, बहुत ज्यादा करती है. एंड देन फिर लोग बाद में कहते हैं कि जी हमें गुस्सा आता है, हम छोटी छोटी बात पे हम फट जाते हैं, हमसे कंट्रोल नहीं होता है. दिस इज ऑल बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड. वो एक बिटरनेस आपके अंदर है, और वो बिटरनेस आपको समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है, ठीक है ना. वो बेसिकली आपकी लॉन्ग रन लाइफ पास से आ रही है. वो आपको लगता है कि ये अभी मुझे किसी ने कुछ कह दिया और मैं एकदम फट पड़ी. नहीं, वो उस वक्त का नहीं होता, वो बिल्टअप होता है, वो कंपाउंड इफेक्ट हो रहा होता है लाइफ का. People, life is a compound effect, as we all love this
this understanding of things compounding over a long sustainable period of time. तो रोजाना जो आपकी एक रेगुलर एक वो जो है सोच की जो नहज है उसको सही रखिए, क्योंकि जो वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, अगर आप रोजमर्रा बेसिस पे जो कुछ करेंगे उसका असर सालों बाद पता चलेगा, और फिर वो उस वक्त तक इतना मैग्नीफाई हो चुका होगा कि वो एक पहाड़ बन चुका होगा. एक और बात है ना कि मैं रीइंफोर्स करना चाहूंगी अपने गुड बेटर बेहतरीन के व्यूअर्स के लिए. बाय द वे, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 2 सेकंड लगेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हिना ने अभी कहा कि कभी कभार हमारे होप्स, विजन्स, गोल्स और ड्रीम्स तो होते हैं टू रीच द स्टार्स, लेकिन फैमिली, लाइफ, कमिटमेंट्स, फराइज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स सामने आ जाते हैं और वो बिल्कुल सामने खड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें चाहते हुए हम चाह भी रहे होते हैं कि हम अपने विजन्स को परस्यू करें, लेकिन क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां हमारे सामने होती हैं, हमको उनको प्रायोरिटी देनी होती है. दिस इज परफेक्टली ओके, लेकिन इन द मीन टाइम, देखिए मैंने कहा है इन द मीन टाइम, in the meantime between you right now and envisioning your goals later, अपने आप को छोड़िए मत. डोंट लेट योर सेल्फ गो, बिकॉज अगर कोई मशीन इस्तेमाल में नहीं आती तो वो जंग खा जाती है. इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. टैलेंट, स्किल्स भी एक तरह से है ना, आई से दे आर लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर लाइक Yeah. लिविंग बीइंग्स. अगर आप अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को, अपनी किसी भी काबिलियत को, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको इंशाल्लाह अलाइव एंड वैलिड रखने के लिए यू हैव टू कीप यूजिंग इट. तो बीच बीच में वॉलंटियर करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, सेल्फ एजुकेट करते रहिए. अगर घर से बाहर जाके एक्टिवली दुनिया में बहुत बड़ी रेवोल्यूशंस नहीं ला सकते, तो घर पे अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के, जैसे इन्होंने ब्लॉगिंग की, इन्होंने राइटिंग की, इन्होंने अपनी सारी क्रिएटिव कैपेसिटीज को बैक बर्नर पे, धीमी आंच पे, लेकिन alive and valid rakha. So please stay active at all levels of your being. And it actually helped me in many ways, you know. हम ये realize नहीं करते, लेकिन when I was doing all these things, I made so many friendships, I made so many relationships, you know. अब इस वक्त, अब जब मैंने अपना ये कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, यू विल नॉट बिलीव मी, पीपल जो लड़कियां मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, यू नो, दे आर रीचिंग आउट टू मी बिकॉज दे आर कनेक्टिंग विद मी. और जिन लोगों को मैं पहचान नहीं रही हूँ, फिर नेचुरली यहाँ फ्रेस्नो में मैंने इतने दोस्त बनाए हैं. मतलब मेरी इतनी लोगों में कम्युनिटी में लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, यू नो. क्योंकि मैंने ये जो छोटे छोटे मैंने काम किए, मॉम्स क्लब ज्वाइन किया, तो मेरा एक पूरा कम्युनिटी है जो मुझे वहां जानता है, ठीक है ना. एंड दे नो मी एज मी, you know. And with Puanas ka jo community, right now I'm also volunteering for a school in Copay, Costa Rica, and I'm actually teaching their children English as a second language. Second grade ke bachon ko main sikha rahi hu. Ab I had never in my life thought ke I'd be able to do that, you know. लेकिन अब जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे एकदम ख्याल होता है कि यार ये काम हम पाकिस्तान में क्यों नहीं करते हैं, you know. And I've been a very strong supporter of जिंदगी ट्रस्ट. तो मैं सोच रही थी कि मैं जिंदगी ट्रस्ट वालों को, शहजाद रॉय को कॉल करूँ. I've been his fan since childhood. He was the first person जिनका मैंने CD डिस्क खरीदी थी, शहजाद रॉय की, when I was like in 7th grade. तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज. तो मैं सोचूं कि आई कांटेक्ट हिम डायरेक्टली कि भाई आप अपने स्कूल्स के अंदर ये ऑनलाइन शुरू करें, हम यहाँ से बैठ के आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है. जरूर करूंगी. और अगर आपकी नीयत है किसी को हेल्प करने की, तो आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, आपको 10,000 लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना. ठीक है, यू डोंट वांट टू, आई मीन देयर आर पीपल जो के चीजें क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट, यू नो, वो स्कूल्स बनाते हैं. तो बहुत सारे लोग जो है वहां अटक जाते हैं भी. नहीं, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ स्कूल, यू नो. देयर आर स्कूल्स ऑलरेडी दैट एग्जिस्ट, यू नो. मैं कहती हूँ कि भाई आप आपके पाकिस्तान में क्या गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, आप वहां जाएं, जाके वॉलंटियर करें, ठीक है. आप वहां जाके टीचर्स को वॉलंटियर करके सिखा दें कोई चीज. आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इफ यू यूज योर क्रिएटिव माइंड, यू नो. और अभी आजकल का जो वक्त है, जो ये इंटरनेट का वक्त है, जो ये ग्लोबलाइजेशन का वक्त है, आई मीन एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन. अब तो मतलब मैं ये कह रही हूँ ना कि अब तो मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ से बैठ के मैं पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ा सकती हूँ. नाउ आई सी इट पॉसिबल.
यू नो, तो अब तो मुझे ये भी नहीं है कि भी मुझे यहाँ से बैठ के कि मैं यहाँ से बैठ के पाकिस्तान के लिए क्या करूँ, मैं तो यहाँ से बैठ के पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, यू नो. बिल्कुल. तो द थिंग इज अगेन यू हैव टू एक्सप्लोर the possibilities that you the way you can make yourself useful. And again I know a lot of times लोगों के लिए पैसा एक फैक्टर हो जाता है. मैंने ये नोट किया है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये इस तरह की चीज नहीं करते क्योंकि दे आर नॉट अर्निंग, दे रादर बी वर्किंग एंड मेकिंग सम मनी. सो द थिंग इज आई बिलीव पैसा, शोहरत, ये सारी चीजें जो है ना किस्मत से होती हैं, और ये चीजें आपको जब आपको मिलनी होती है ना मिल जाती हैं, ठीक है ना. ये आपका काम सिर्फ अपना नियत सही रखना, आपका काम जो है सिर्फ एफर्ट करना, अपनी डायरेक्शन पे चलते रहना, और जो होता है वो आगे से खुद ही हो जाएगा. अगर आपकी किस्मत में कोई किसी किस्म का करियर बनाना लिखा है तो आप करियर बना लेंगे, अगर नहीं लिखा है तो वो नहीं होगा. लेकिन आप अपना काम तो करें ना. यू मेक योर सेल्फ यूजफुल, यू मेक योर सेल्फ यूजफुल. अगर आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव आल्सो सेड कि जी हम अपने घर ही को ठीक कर लें, हम अपने बच्चे ही पाल लें. नहीं, बिल्कुल आप अपने बच्चे पाले. कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को छोड़ के आप बाहर के बच्चों की फिक्र ज्यादा करें, ठीक है ना. लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, you know, and if you are privileged and if you have been given the money or the privilege or the education or the skills, और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप किसी एक बंदे की भी हेल्प करें, एक बंदे की भी हेल्प करें, you know, why not, you know. I mean, I always say कि अगर आपके पास ये कुव्वत है तो you should do it. एक और चीज जब अभी आप मेंशन कर रही थी, आई एम सॉरी माय डॉटर इज हियर, शी इज जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन, आई होप शी इज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. लेकिन अभी आप बात कर रही थी गोल्स की, एंड यू नो लोगों की गोल्स होते हैं, लोगों के विजन्स होते हैं. ये भी रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि गोल्स और विजन्स जो है वो आपके चेंज होते हैं, एंड इट्स ओके, ठीक है. आई हैव यू नो, मैंने अपने अपने मेरा एक ग्रुप है फेसबुक, उस ग्रुप में मैंने डाला एक क्वेश्चन डाला ना कि when you were a child, what did you see yourself doing? What was your dream? And then people are like, yeah, I wanted to become an engineer, or I wanted to do something in my life. Yeah, for example, me, I wanted to become a doctor. ठीक है, it's okay. अगर आप वो अपना जो ड्रीम है या आपका जो गोल है या अगर आप वो अपना विजन को आप अचीव नहीं कर सके, because it changes with life. आप इवॉल्व करते हैं, आपकी गोल्स भी इवॉल्व करती हैं, आपकी आप sometimes you realize later on कि this is not exactly what I want something else, you know. Something else brings you more satisfaction than what you thought you wanted, ठीक है. And sometimes and it's okay to fail, you know. लोग फेलियर से घबराते हैं, लोग क्या कहते हैं, जब कुछ अचीव नहीं कर पाते, अकॉम्प्लिशमेंट नहीं होती किसी किस्म की, तो उससे घबराते हैं. दे फील कि भाई दूसरे लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुंची है. जैसे अब मैं अपने आप को कंपेयर करना शुरू करूँ कि there are other people who are doctors and who are doing so well in their life and I'm not, तो फिर तो मैं कभी I can never be happy because I'm then constantly feeling that I am a failure, but I'm not a failure, ठीक है ना. अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो लेकिन I've achieved other things in life and I've achieved a lot of, और कुछ ना से, so I have achieved a lot of friends. To be honest, I've achieved so many good relationships with people. मैंने लोग मुझसे जब बात करते हैं तो वो सिंसियरली मुझसे बात करते हैं, वो मुझे जब दुआएं देते हैं, मेरे बच्चों को जब दुआएं देते हैं, तो मुझे उससे बड़ा रिवॉर्ड और क्या चाहिए. यू नो, व्हेन आई वाज अ डॉक्टर, जब मैं हाउस जॉब कर रही थी, तो हम वहाँ कराची में सिविल हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी. तो सिविल हॉस्पिटल इज अ वेरी पुअर, वहाँ तो सारे गरीब लोग आते हैं. हम वहाँ क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे. हम खुद एक स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट से बिल्कुल हाउस ऑफिसर्स, तो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ न्यू डॉक्टर्स होते हैं, यंग डॉक्टर्स होते हैं. तो कोई हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं थे, स्पेशलिस्ट नहीं थे. लेकिन अगर हम किसी को थोड़ा सा कोई हेल्प करते थे या उनको ट्रीट करते थे और उनसे अच्छे से बात करते थे, वो जो आपको दुआएं देते थे, ठीक है ना. तो मैं कहती थी कि यार हमें एज डॉक्टर्स दैट्स व्हाट वी वांट, यू नो लाइक. और हम जो है जब इन चीजों से इम्यून हो जाते हैं ना, नेवर गेट इम्यून टू दिस. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल गेट इम्यून टू दीस थिंग्स, दे काइंड ऑफ स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना. नो, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, आप यू डोंट रियलाइज कि आप उस एक बंदे की लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं. बहुत दफा मैंने देखा है ये भी होता है कि लोग अच्छा करते करते फिर बाद में ना दे स्टार्ट कि भी मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, कोई मेरे लिए अच्छा ही नहीं करता. ये भी होता है, ये ठीक बहुत है ना. वो डेलिकेट बैलेंस होता है. और आपको वही, हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू.
हाँ, मतलब ये भी लोग करते हैं कि यार मैंने सारी उम्र जो है हमने दूसरों के साथ अच्छा किया और लोगों ने हमारे साथ हमेशा बुरा किया। हाँ अरे भाई, होता आप है। किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आप अपने दिल के लिए करते हैं ना, आप ऐसे करें कि आपका एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। अगर आप यही सोच रहे हैं कि जी दूसरा मेरे लिए क्या करेगा, या ये कि भाई लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करते इस वजह से अब मैं अच्छा नहीं करूंगी, यू नो, इट्स आई मीन फॉर मी, मुझे ये बात समझ नहीं आती ना जब लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई एक सर्टेन पॉइंट कि मैंने सारी जिंदगी लोगों की हेल्प की है, ठीक है ना, और लोग जो है वो मेरा नाजायज फायदा उठाते हैं और अब मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगी, यू नो, है ना, यहाँ ये पे बात भी मैं मुझे। एक जी। आइडिया मुझे आया, allow me to share, है ना, because maybe I've been fortunate enough to have known and to be associated with lots of people, family, extended family, friends, colleagues. I also know many people who have done a lot in their lives for others, who have spent their best years serving others, uh, out of choice, out of life situation and circumstances, but at the end of the day उन्होंने वाकई अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी थी। अच्छा, विद इन दैट ग्रुप उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने ये बहुत खुश दिली से किया है, और उन्होंने किया है, और उन्होंने वो सब, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड अल्लाह ताला से हैं। तो वो बहुत लाइट हार्टेड उनकी उनकी फीलिंग है, और वो बहुत, जिसको हम कहते हैं ना, उनकी तबीयत में बहुत ही हल्का फुल्कापन है, क्योंकि वो लोगों से, फराग दिल होते हैं, जी बहुत ऐसे लोग फराग दिल होते हैं। जी, वो बहुत जेनरस उनकी स्पिरिट है, और वो लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती, और वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है कि द वर्ल्ड हम्म। ओज मी एनीथिंग। अच्छा, यस। लेकिन है ना, मैं अपने जैसे और बहुत नॉर्मल अपने जैसे लोगों की बात करूंगी। फ्रेंड्स, इट्स ओके, है ना, बिकॉज हम एट द एंड ऑफ द डे हम फरिश्ते नहीं है, इंसान है। ना, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होता है कि जब हमको लगे कि यार मैंने अपने एंड से बहुत ज्यादा किया है, और वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, कि वो मुझे थोड़ा सा भी वो नहीं हो रहा, तो नाउ हिना ने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, और प्लीज आप हिना की बातों पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि हिना ने कहा है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं रखें, नेकी करिए, नेकी बराए नेकी, और लोगों से एक्सपेक्टेशन जीरो कर लें, ताकि आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस 100% पे आ जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रियलिस्टिक डी टूर ले रही हूँ, कि अगर आपको कभी लगे कि यार आप किसी एक शख्स या बहुत सारे कुछ कुछ लोगों के मामले में सिर्फ आप एक गिवर बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है दैट यू आर नॉट अ टेकर, यू आर ओनली अ गिवर। लेकिन अगर आप उसकी वजह से थोड़े से रिजेंटफुल और बिटर हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, तो और अगर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना, आई एम जस्ट यूजिंग द माइल्ड टर्म मॉडिफाई, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दीजिए क्योंकि सामने वाला गलत कर रहा है, वो आप बात उसका बिल्कुल अमल, ठीक कर रही हैं। हाँ आप बात थोड़ा सा बिल्कुल ठीक मॉडिफाई कर रही हैं। जी। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। बिल्कुल 100% भी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर देर आर पीपल जो आपको मिस यूज भी करते हैं, टॉक्सिक ठीक लोगों, है ना। डोंट फॉल विक्टिम टू टॉक्सिक पीपल। देखिए, लोगों के लिए कीजिए खुश दिली और अच्छी नीयत के साथ, एक्सपेक्टेशंस हटाकर। ये तो लिख लीजिए कि आप जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं वो बदला नहीं देगा। ये अगर आप सोच के चलेंगे ना घर से, तो आपको, फिर आपको ना इंशाल्लाह आपको ये डेली जो एक डिसअपॉइंटमेंट और वो चीज है ना, अपने आप को इससे वो कर लीजिए, पाक कर लीजिए। हम, दुनिया इस प्रिंसिपल पे फंक्शन करती है कि आप नेकी करेंगे, आपके साथ कहीं और से नेकी अल्लाह हो, ताला आपकी मदद नेकी, और करेंगे। ये होती है, ये बिल्कुल, ये तो मैंने, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, I have absolute faith in this and I have experienced this also, कि आपकी हर नेकी, आपकी हर नियत, आपकी हर चीज का बदला आता है, बिलीव मी। मतलब मैं यहाँ 13 साल से हूँ, जो जॉब्स मुझे मिल रही हैं इस वक्त, जो मुझे मोहब्बत मिल रही है, इट्स कमिंग ऑटोमेटिकली, इट्स कमिंग टू माई डोर, वाह। stuff is coming to my door without, I am very thankful to Allah Mia for all the love and the respect that he has bestowed me, और जो और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ। जो आपने बोला, रिलेशनशिप सारी गिव एंड टेक की होती हैं, ठीक है, एंड यू कैन नॉट बी 100% गिवर, ये ना, ये भी एक बहुत आइडियलिस्टिक सोच है कि आप बस सिर्फ दे ही जा रहे हैं ना, ये हो नहीं सकता है ना, हो आप नहीं आप सकता। आप हो नहीं सकता है ना। और ऑफ कोर्स देने में भी आपको कहीं ना कहीं आपको
बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिसे कहते हैं ना कि आप हर किसी को अपने घर में लाके नहीं बिठा सकते, ठीक है ना। आई मीन देयर आर होमलेस पीपल अराउंड मी, तो क्या हर किसी को अपने घर ले आऊंगी, या मैं आई कैन नॉट डू दैट, लेकिन मैं एक बंदे को या दो बंदे के लिए भी कुछ करूंगी, यू नो, तो वो आप खुश नियति के साथ करें, खुश असलूबी के साथ करें। अल्लाह मियां ने आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, या कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जी आप सारी दुनिया का ठेका आपने लिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यू नो, इट्स इवन अपनी फैमिलीज में, यू नो, आई मीन देयर आर पीपल आई नो, आपके रिश्तेदारों में होते हैं लोग सफर कर रहे होते हैं, आपके अहबाब होते हैं, रिश्तेदार दूर के होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके स्कूल कॉलेज। आई मीन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि यार कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स, कीप इन टच विद पीपल, ठीक है ना। बहुत दफा ये भी होता है कि हम बाहर चीजें कर रहे होते हैं लेकिन हम अपने लोगों को भूल जाते हैं। Charity begins at home. चैरिटी बिगिंस एट होम, इट डज, ठीक है ना। मतलब आप बाहर तो जाके चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में आपकी कोई कजन है, कोई रिश्तेदार है, कोई मामू है, कोई दोस्त है, स्कूल में आप किसी के साथ पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको करीबी दोस्त था, नहीं भी करीबी दोस्त था, लेकिन यू ओ देम मोर देन यू ओ समबडी यू डोंट नो। बिल्कुल। और देखिए हिना ने कहा है कि यू डोंट हैव टू गो फार एंड वाइड लुकिंग फॉर पीपल यू कैन हेल्प। आप अगर अपनी करीब से स्टार्ट करें तो आपके जितने करीब लोग हैं तो और वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं आपकी अटेंशन, आपकी कोई भी मदद। और अगर हम सब everyone on the planet starts helping people, अपने न्यूक्लियर फैमिली से लेके एक्सटेंड करिए, वाइडर सर्कल में जाइए, तो अगर हर एक अपने करीबी लोगों की मदद करना शुरू कर दे और जिसके हालात और मामला से आप वाकिफ हैं आप उनको सपोर्ट करें, तो फिर तो दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगी। हर बिल्कुल। एक ही अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर रहा है। And it's not about money also, believe me, it's not about money. मैं as I said, जब मैं लोगों के साथ खुश असलूबी से बात करती हूँ, I'm basically more of a hearing ear, ठीक है ना। और मैं सिर्फ अपनी अपनी जबान से अपनी जिसे कहते हैं ना अपना, आई जस्ट गिव देम अ शोल्डर टू क्राई ऑन। और जब हो सकता है मैं कुछ फाइनेंशियली कर सकती हूँ तो करती हूँ, वरना ये थोड़ी है मैं, इट्स नॉट दैट आई एम अ मिलियनेयर कि भी मैं सबको पैसे बांटती फिर रही हूँ, ठीक है ना। सो इट्स नेवर अबाउट मनी। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक चैरिटी इज ओनली अबाउट मनी, नो इट्स नॉट अबाउट मनी, you know, it's about what you can do with what you have, you know, with your skills, with your skills in the sense कि मतलब आप इंसान है ना, आपके अंदर कोई ना कोई तो स्किल है ना, कुछ तो आपको आता है, आपको बोलना ही आता है, आपको सुनना आता है, आपको बात समझ नहीं आती है, आपने कुछ पढ़ा लिखा है, आप किसी को कोई स्किल सिखा सकते हैं, आप something, anything, but whatever you can do in your power, you know, but be there for people, it's very important. Hannah, thank you so much for giving us so much food for thought, so much Thank you. about what we can do where we are with what we have. आपने हमें बता दिया है कि अपने गिवन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में रह के भी हम बहुत सारी अच्छाई रेडिएट कर सकते हैं अपनी ज़ात से, और हमें वो करना चाहिए। व्यूअर्स, बिफोर आई से थैंक यू टू हिना और उनसे टेक अवे मैसेज लूँ, मैं ये कहूँगी कि हिना की तमाम बातों को आप इनकैप्सुलेट करके इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में। और ये जो पंच लाइन मुझे मिली है, हिना ने कहा है कि यू डोंट हैव टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, यू डोंट हैव टू स्टार्ट whole foundations and organizations and committees to make a positive change in the world. अगर आप किसी चीज का होल स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप किसी एग्जिस्टिंग होल का पार्ट बन सकते हैं, बट begin where you are with what you have and spread the message of positivity. और दूसरी बात जो हिना ने कही है कि आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है किसी को सपोर्ट करने के लिए और मदद करने के लिए। चैरिटी मीन्स टू गिव, but it doesn't say it has to be money. Charity means to lend somebody a listening ear, to say something hopeful and energizing and spirit lifting to somebody. किसी को अपनी कंपनी और अपना टाइम दे दीजिए, किसी को की बात इतनी इज्जत और रिगार्ड से सुन लीजिए कि वो अपने बारे में बेहतर फील करने लगे। ये सब कुछ चैरिटी के जुमरे में आता है। और अब हिना से रिक्वेस्ट करूंगी, हिना आप अपने क्वानस के काम के साथ जो आप कर रही हैं उसको हमें एक हमें टेक अवे मैसेज दे दीजिए। बस take away message, so I don't know what to give. It's just that love the people around you, you know, care for them, and be human and allow other people to be human.
it's just so very important कि हम एक दूसरे को थोड़ा सा space दें, थोड़ी सी understanding दें. It's a very big world we live in. There's a lot of suffering, and people are suffering in their own way. Everybody is suffering. There are people who are suffering in big ways, people living in war zone areas, उनकी suffering अलग है, और लोग poverty में रह रहे हैं, उनकी suffering अलग है. लेकिन there are people जो कि well off भी हैं, जो poverty में नहीं है, लेकिन उनकी भी sufferings हैं. There are people जिनके हाँ, for example, people are not getting married, या उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, या उनके और तरह की issues हैं, whatever, I mean, there are so many issues, addiction की issues हैं, I mean, बहुत issues हैं जिंदगी में लोगों के साथ, conflict, relationship issues हैं, लोगों की बनती नहीं है, just be kind. I mean, I just say कि just be kind and give space to people and understand that everybody is suffering, and people are suffering in their own way, and just be kind and be a listening ear. That's all I would say. Yes. Let's hope that we are. Thank you so much, Fawzia. Thank you so much for having me. Hina, pleasure talking to you. Feeling light and feeling hopeful already. Thank you so much. Thank you so much. And we are going to connect with you again very soon. Inshallah. Thank you. Okay, take care. Love to the kids. Bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah.